Hello everyone. Today I am going to start with the chapter mole concept and redox titration. यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर नहीं करवाने वाली हूँ. मैं बस दिस इज़ काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स और मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड है जैम एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, मैं आप सबको वही सब चीज़ें करवाने वाली हूँ. ओके, सो लेट्स बिगिन. या सो लुक, आई हैव द कॉन्सेंट्रेशन फार्मूला लिस्ट इन फ्रंट ऑफ मी. तो सबसे पहले वाला जो फार्मूला है दैट इज़ परसेंटेज वेट बाई वेट. ओके, परसेंटेज वेट बाई वेट. सो दिस इज गिवन बाई वेट ऑफ सल्यूट दैट इज डब्ल्यू बी. हियर बी रिप्रेजेंट सल्यूट और ए क्या रिप्रेजेंट करता है? ए रिप्रेजेंट करता है सॉल्वेंट. सो दिस इज एक्चुअली डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी. This means WA plus WB means weight of solution. So percentage weight by weight is nothing but weight of solute divided by weight of solution into 100. Okay, into 100. So this comes out as percentage क्योंकि हमें पता है 100 से मल्टीप्लाई करने से we get it per 100% यानी per 100. Okay, and this is temperature independent. अब कैसे पता चलेगा कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? देखो यहाँ पे we have used mass. Okay, हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे? मास, वेट या मास. नाउ वी नो कि टेम्परेचर के साथ साथ जो मास होता है, जो वेट होता है, दैट डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता है. ओके, सो एज अ रिजल्ट दिस कंसंट्रेशन टर्म इज गोइंग टू बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन. दूसरा वाला क्या है? इट इज़ नथिंग बट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम. परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम विच इज़ गिवन बाई weight of solute divided by volume of solution into 100. Okay, and this is temperature dependent. Why so? Because यहाँ पे क्या use हुआ है? Here we have used volume of solution. Okay, and as we know that volume is temperature dependent. Volume is directly proportional to temperature at constant pressure. Okay, fine. So how can we represent these two? Let me give an example. So जो पहला वाला है that basically means in 100 gram of solution you will have let us suppose 20% है हमारा weight by weight solute का. So 100 gram of solution में तुम्हारे पास क्या होगा? 20 gram solute होगा. Okay, it is as simple as that. जो second वाला है that means let us suppose again we have 20% but here it is weight by volume. Okay, so here it is going to be 20 gram of solute in 100 ml solution. Okay, as simple as that. So now let's proceed to the next one. What is that? Percentage volume by volume. So this is nothing but volume of solute divided by volume of solution. Okay, solute ka volume divided by volume of solution into 100. Okay, now let's look at the next formula, formula number 4, and this is one of the most common, one of the most used concentration term, and that is molarity, which is also represented by a capital M. इसे हम capital M लिख के भी represent करते हैं. Okay, so what is it? What is molarity? It is basically moles per liter, यानी moles of solute divided by volume of solution in liters. Okay, I hope it is clear. Sorry for the background noises. Okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है? Volume in liters. Okay, and NB is representing moles of solute. So this is basically molarity. So we can write, अब as we know हम लोग moles of solute को कैसे लिख सकते हैं? We can write moles, number of moles which will be equals to given mass by molar mass. ठीक है, क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास. सो आई कैन सब्सटीट्यूट, मैं एन बी के प्लेस में सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ डब्ल्यू बी बाई एम बी. ओके, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट ईच टर्म मीन्स. डब्ल्यू बी मीन्स वेट ऑफ सल्यूट, एम बी मीन्स molar mass of solute. So weight of solute divided by molar mass of solute will give you nothing but small nb, that is moles of solute, divided by volume in liters. This gives you molarity. Okay, so now let's look at the next thing. फिफ्थ वाले फॉर्मूले पे आ जाते हैं. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एन मोल्स. एन मोल्स इज नथिंग बट मोलारिटी इनटू वॉल्यूम. व्हाट वी नो, मोल्स इज नथिंग बट एन बाई वी. ओके,
molarity is nothing but n by v. Okay, so if we just multiply it by volume तो हमारे पास क्या बच जाएगा, we will be left with number of moles. Okay, so that is the reason why अगर हम लोग को number of moles देखना है then we just need to multiply molarity and volume. Now if volume is in liter then हमें n का जो वैल्यू है we get it in moles, बट n का जो वैल्यू है वी गेट इट इन मिली मोल्स अगर हमारा वॉल्यूम जो है दैट इज इन मिलीलीटर. ओके, अब ये मिली मोल क्या है, लाइक वी नो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, राइट. सिमिलरली आई कैन से 1 मोल इक्वल्स टू 1000 मिली मोल. सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस, ये समझ में आ गया होगा. सिमिलरली आई कैन से 1 मोल इक्वल्स टू 1000 मिली मोल. सो फ्रॉम दिस इफ़ आई कीप द वॉल्यूम इन मिलीलीटर और उसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ मोलारिटी को, आई गेट नंबर ऑफ मोल्स और इन विच यूनिट्स आई गेट इट इन मिली मोल्स. ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं. बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मोलारिटी इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट. ये आपको समझ में आ गया होगा बिकॉज वी हैव यूज्ड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर ये जो वॉल्यूम है दिस इज गोइंग टू बी टेम्परेचर डिपेंडेंट. ओके, नाउ एज आई प्रोसीड फर्दर, आगे हमारे पास है मोलालिटी. मोलालिटी दिस इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्योंकि हम यहाँ पे वॉल्यूम यूज़ नहीं करते हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या है, एन बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए, एन बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए. सो दैट मीन्स हियर वी आर यूजिंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट. प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा, हेयर सोल्यूशन का कुछ यूज़ नहीं किया जाता है, यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट को मेजर किया जाता है. ओके, सो इट इज़ नथिंग बट मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट वेट मस्ट बी इन केजी. सो इसका यूनिट क्या होता है, मोल्स पर केजी. ओके, मोल्स पर केजी. नेक्स्ट हम स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, स्ट्रेंथ को देखा जाता है, स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ molarity into molar mass of solute. Okay, so basically let me tell you what is strength. Strength कुछ भी नहीं है, strength is nothing but आपके 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 लीटर सोल्यूशन में कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है. ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर. 1 लीटर जो सोल्यूशन है उसमें कितना वेट सोल्यूट प्रेजेंट है. सो द यूनिट विल कम इन ग्राम पर लीटर. सो दिस इज एक्चुअली स्ट्रेंथ. अब आप इसे कैसे निकालेंगे, इफ़ वी जस्ट मल्टीप्लाई मोलर मास इनटू मोलारिटी. ओके, लेट्स सी हाउ इट इज़. मोलारिटी इज़ नथिंग बट, अगर मैं मोलारिटी को लिखना चाहूँ इट इज़ नथिंग बट डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू वॉल्यूम. ओके ओके, सो एक्चुअली दैट वॉज नॉट द इशू. प्लीज़ इस बात को इग्नोर करना, दिस विल नॉट बी देयर. दिस इज़ एक्चुअली molar mass of solute. Okay, so क्या होता है, I can write this way, mb into wb divided by mb into volume. so यहाँ पे mb कैंसिल हो जाएगा, thus will be left with weight of solute divided by volume of solution और हमारे पास जो है स्ट्रेंथ वो आ जाएगा. प्लीज़ इसको याद रखिएगा, दिस विल नॉट बी देयर. ओके, ये जो लिखा है मैंने ये गलत है. ओके, जो PDF आपको मिलेगा वहाँ पे दिस विल बी इरेज्ड. ओके, आई विल कीप दैट इन माइंड. अच्छा, अब आगे चलते हैं. आगे हमारे पास क्या है, आगे का जो कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज़ नॉर्मलिटी एंड नॉर्मलिटी इज़ ऑल्सो वेरी फेमस. ओके, स्पेशली वाइल टाइट्रेशन हम लोग ज़्यादातर जो कंसंट्रेशन है वी टेक दैट आउट इन नॉर्मलिटी. अब नॉर्मलिटी इज़ नथिंग बट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. नाउ अ बिग क्वेश्चन अराइजेस कि ग्राम इक्विवेलेंट है क्या. ग्राम इक्विवेलेंट इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स into NF, where NF is N factor. Okay, number of moles into N factor. Now let me elaborate on this. यहाँ पे equivalent weight बोल के concept आता है. Equivalent weight is nothing but molecular weight और molar weight divided by N factor. इससे आपको जो मिलता है this is nothing but equivalent weight. अब now if you अगर आप ऐसा करते हो दैट इज़ वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, लेट मी राइट दिस एज WEQ. ये जो आता है ना
दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट. ओके, सो वेट ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, दिस इज नथिंग बट ग्राम इक्विवेलेंट. अब क्या होता है, नाउ वेट ऑफ सल्यूट इज WB. ओके, वेट ऑफ सल्यूट WB हो गया, एंड इक्विवेलेंट वेट का क्या है, इट इज़ नथिंग बट MB, वेर MB स्टैंड्स फॉर मोलर वेट ऑफ सल्यूट. ओके, और ये जो NF है, दिस इज डिवाइडेड बाय NF. सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट दिस एज WB इंटू NF डिवाइडेड बाय MB. ओके, सो अब देखो, आई कैन राइट WB बाय MB एज NB, वेयर NB मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इंटू NF. NF क्या है, N फैक्टर. तो यहाँ से ये आ गया ना, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इंटू N फैक्टर. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. ये भी क्लियर है, ठीक है. अब यहाँ पे आते हैं, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर. ओके, नॉर्मलिटी क्या है, मोलैरिटी इंटू N फैक्टर. आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो फॉर्मूला है मोलैरिटी का, वहाँ पे क्या है, व्हाट वी हैव इज W बाई MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स. तो यहाँ पे क्या है, हम लोग को क्या चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, वी नीड द वेट ऑफ सल्यूट विच वी हैव, और हमारे पास है मोलर वेट ऑफ सल्यूट. अब हमें चाहिए N फैक्टर. N फैक्टर का क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल सिंपली मल्टीप्लाई इट विद N फैक्टर. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे वी विल सिंपली मल्टीप्लाई इट विद N फैक्टर. तो हमें क्या मिल जाएगा, ये MB बाई NF जो है, दैट इज गोइंग टू बी नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट. ओके, चलो इतना तक आई होप इट इज़ क्लियर. सो क्या हो जाता है, नॉर्मलिटी इज़ नथिंग बट मोलैरिटी इंटू N फैक्टर. मोलैरिटी के साथ हम N फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नॉर्मलिटी मिलेगा. नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन. दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमनली यूज्ड कंसंट्रेशन टर्म. डिनोट किया जाता है XB, वेर आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि B स्टैंड्स फॉर सल्यूट. सो इफ आई टॉक अबाउट मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, इट विल बी XB, और दिस विल बी इक्वल्स टू NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ओके, अच्छा, अब अगर ऐसा हो कि मेरा जो मिक्सचर है वहाँ पे A है एंड B है. ओके, एंड XA इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड XB इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ B, देन इट इज़ वेरी सर्टेन कि हम दोनों को ऐड करेंगे, सो इट विल कम आउट एज 1. ओके, सो दीज आर एप्लीकेबल, चाहे आपका जितना भी सारा वो कंपोनेंट्स हो मिक्सचर में, ये सबके लिए एप्लीकेबल है. सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का जो सम है दैट इज गोइंग टू कम आउट एज 1. ओके, सो इतना तक क्लियर है. नेक्स्ट आई हैव अ फॉर्मूला, एंड ये जो फॉर्मूला है ना, इसका आई विल डू वन थिंग. ये फॉर्मूला ऐसे रटते नहीं है. लेट्स डू वन थिंग, आई विल डू अ सम रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट. ओके, तो इसको ना फिलहाल के लिए होल्ड में रखते हैं. ओके, लेट्स प्रोसीड. तो अब हम लोग आगे जाएंगे एंड यहाँ पे वी विल स्टडी अबाउट N फैक्टर. N फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको ना होल्ड पे रखेंगे. ठीक है, इस चीज़ को ज़रा सा होल्ड पे रखेंगे, इस पे डायरेक्ट सम करेंगे. ओके, नेक्स्ट वीडियो इट विल बी ऑन द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर. तो वहाँ पे इसका एप्लीकेशन देखेंगे. हाँ, इसे ऐसे रटते नहीं हैं. सो नेक्स्ट व्हाट वी विल सी इज N फैक्टर. N फैक्टर ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन. सो एसिड बेस के केसेस में वी विल सी द N फैक्टर फर्स्ट. अब let us talk about acids and acids which are non-reacting. Non-reacting यानी it is not participating in a reaction. तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए N factor will be equals to number of replaceable H plus, यानी कितने सारे H plus हम निकाल सकते हैं उस acid से. Okay, so the first acid which we have is H2SO4. Okay, so यहाँ पे we can take out 2H plus, so N factor is going to be 2. Similarly HCl में we can take out 1H plus, N factor 1. Acetic acid में we can take out 1H plus, so N factor is again. Next what we will be looking for is reacting species. तो जब हम acids को react करवाते हैं तब हम उसका N factor कैसे calculate करते हैं. So I have this H2SO4 and we are reacting it with NaOH. ठीक है, so क्या बन रहा है, Na2SO4. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए और H2O बन गया. ठीक है, सो क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, सो दैट इज द रीजन NF इज गोइंग टू बी 2. ओके, एज सिंपल एज दैट. अब नेक्स्ट में देखते हैं, H2SO4 इज रिएक्टिंग विद NaOH, बन क्या रहा है, NaHSO4 एंड H2O. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ अनबैलेंस. ठीक है, मैंने बैलेंस नहीं किया है, आप बस बेसिक्स को समझो.
ओके। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, देर इज़ ओनली वन हाइड्रोजन विच इज़ गेटिंग रिप्लेस्ड। ध्यान से देखो, बस एक ही हाइड्रोजन H2O बन रहा है। ओके, दैट इज़ द रीज़न वाई यहाँ पे n फैक्टर इज गोइंग टू बी 1। ओके, याद रखना ये H2SO4 देख के प्लीज़ डू नॉट डू इट 2। ठीक है, यहाँ पे H2SO4 का n फैक्टर 2 नहीं होने वाला है। ओके, वी आर गोइंग टू लुक फॉर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स विच इज़ गेटिंग रिप्लेस्ड। नेक्स्ट इज बेस। बेस में क्या देखेंगे, इफ बेस इज नॉन रिएक्टिंग स्पीशीज इट इज सेम लाइक एसिड्स। हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस। ओके, सो लाइक आई हैव NaOH, यहाँ पे बस एक ही OH माइनस आयन है तो n फैक्टर इज गोइंग टू बी 1। एंड इफ आई गो लुक फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे 2 OH माइनस आयंस है एंड दस n फैक्टर इज गोइंग टू बी 2। ओके, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर हम बेस को रिएक्ट करवाते हैं, ओके, इफ अ बेस अंडरगोज रिएक्शन, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ऑल्सो वी विल सी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस, और वही हो जाएगा आपका n फैक्टर। ओके, लाइक यहाँ पे आई हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ रिएक्टिंग विद एसिटिक एसिड, तो क्या बन रहा है हमारा कैल्शियम एसीटेट एंड आई एम गेटिंग वाटर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कैल्शियम का जो 2 OH माइनस आयंस है, बोथ द OH माइनस आर गेटिंग रिप्लेस्ड, एज अ रिजल्ट n फैक्टर इज गोइंग टू बी 2। नेक्स्ट, अगर मैं उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे रिएक्ट करवाती हूँ एंड ओनली 1 OH माइनस इज गेटिंग रिप्लेस्ड, इज गेटिंग कन्वर्टेड टू H2O, उस केस में हमारा जो n फैक्टर है इट इज़ गोइंग टू बी 1। ओके, डन। नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल इज अबाउट redox टाइट्रेशन। तो redox टाइट्रेशन के केस में कैसे वी फाइंड आउट द n फैक्टर। सो n फैक्टर इज नथिंग बट चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल ऑफ सब्सटेंस। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल ऑफ सब्सटेंस, याद रखना यहाँ पे पर मोल है। सो इसका मतलब क्या है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सो आई हैव दिस फर्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज डाइक्रोमेट। ओके, दिस इज डाइक्रोमेट आयन। सो डाइक्रोमेट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू Cr3+। ठीक है, सो यहाँ पे देख के समझ आ रहा है, दिस इज नथिंग बट इन +6 स्टेट। सो ये दिस हैज गॉन फ्रॉम +6 टू +3। सो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन एडिशन हुआ है। ओके, द ऑक्सीडेशन स्टेट हैज डिक्रीज्ड 3 टाइम्स। ओके, बट दिस डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेटस पर मोल, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने सारे क्रोमियम है, 2 क्रोमियम। सो यानी यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3 जा रहा है एंड दैट इज पर मोल, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 क्रोमियम है, यानी यहाँ का जो n फैक्टर है वी आर गोइंग टू सिंपली मल्टीप्लाई विद द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखते क्या होता है, यहाँ पे देखना डाइक्रोमेट का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6। ओके, लेकिन हमारा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज 3। डिफरेंस क्या है दोनों में, 3। अब कैसे निकालेंगे इसका इन फैक्टर, हमारे पास Cr2 कितना है, Cr कितना है, वी हैव 2 क्रोमियम, 2 मोल्स ऑफ क्रोमियम, तो सिंपली इसके साथ इंटू 2 कर देंगे, व्हाट वी गेट इज 6 एंड 6 दस बिकम्स द n फैक्टर। ओके, इसका n फैक्टर जो है पोटेशियम नहीं सॉरी डाइक्रोमेट का n फैक्टर जो है दैट इज गोइंग टू बी 6। ओके, सिंपल। नेक्स्ट, इफ आई लुक फॉर दिस Cr3+ के लिए अगर मुझे n फैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब Cr3+ में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। ओके, एंड क्या हो रहा है, 3+ से क्या बन रहा है, इट इज क्या बन रहा है, 6+। ओके, नाउ ये चीज़ ध्यान में रखना दैट 1 Cr3+ गिव्स 1 Cr6+। ओके, कीप दिस इन माइंड, 1 Cr3+ गिव्स 1 Cr6+। सो दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में द डिफरेंस इज 3 अगेन, ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस इज 3, लेकिन जो कि 1 Cr3+ इज गिविंग 1 Cr6+, सो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 1 और हमारा जो आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 3। सो n फैक्टर ऑफ Cr3+ इज 3। आई होप इट इज क्लियर। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 Cr2O7 इज गिविंग 2 मोल्स ऑफ Cr3+, यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे Cr2 हमें 2 मोल चाहिए हो रहा है टू गेट दिस Cr3+, दैट इज द रीजन आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद 2। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 Cr3+ गिव्स 1 Cr6+, सो दैट इज द रीजन आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद जस्ट 1। ठीक है, समझ में आया। शॉर्टकट कैसे याद रखेंगे, मतलब शॉर्टकट कैसे देखेंगे, शॉर्टकट क्या, हमें बस देखना है कि एटम का एटोमिसिटी क्या है। ओके, यानी ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे कितने सारे क्रोमियम एटम है, यहाँ पे नहीं,
कि फॉर्मूला में कितने सारे क्रोमियम एटम एक्चुअली में बाइंड हुआ है. ओके, सो यहाँ पे 2 बाइंड हुआ है. सो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब हम n फैक्टर निकालेंगे इसका, हम सिंपली वी विल मल्टीप्लाई इट विद 2 बिकॉज फॉर्मूला में हमारे पास 2 क्रोमियम है. लेकिन इस केस में देखो, फॉर्मूला में वी हैव ओनली 1 क्रोमियम 3+. ठीक है, एज अ रिजल्ट वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद 1. दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर. Okay, so next let's proceed with the next one. Okay, so here we have so basically इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये निकालना भी it is kind of a tricky thing. So let me show you. Let us suppose यहाँ पे I have sodium thiosulfate. Okay, so इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, let's see that. ओके, सो लेट मी फर्स्ट एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ. जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, सो ये जो Na2S2O3 है, वी हैव अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ दिस. ये कुछ ऐसा दिखता है. ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस माइनस है क्योंकि यहाँ पे एक Na+ और यहाँ पे एक Na+ आके देयर इज एन आयनिक इंटरेक्शन. ओके, सो दिस इज द मॉलिक्यूल. अब क्या होता है, अब हमें देखना है इस सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, एंड वी ऑल्सो हैव टू सी कि इस सल्फर में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है. सो वी कैन सी कि ये वाला जो सल्फर है जिसको मैंने रेड से मार्क किया है अभी, दैट इज हैविंग अ होमो एटोमिक बॉन्ड विद अनदर सल्फर. तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है. एज अ रिजल्ट हमारा जो रेड मार्क्ड वाला सल्फर है दैट हैज़ एन ऑक्सीडेशन स्टेट 0. लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट दिस ब्लू मार्क्ड सल्फर, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज गोइंग टू बी, इसके लिए +1 एंड हियर +2. सो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी +4. आई होप इट इज क्लियर कि ये +4 कैसे हो रहा है. ओके, सो दिस रेड मार्क सल्फर हैज़ एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 0 और ये जो ब्लू मार्क सल्फर है दैट हैज़ एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4. लेकिन ये तो इंडिविजुअल एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट हुए. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. ये इंडिविजुअल एटम्स के ही निकलते हैं. लेकिन जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी दैट इज द सम ऑफ टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व्ड. सो यहाँ पे टोटल ऑक्सीडेशन क्या है, एक का 0 एक का 4, सो इट इज़ 4. एंड कितने सारे सल्फर एटम्स है 2, सो यानी 4/2 इट इज़ +2. सो आई कैन से कि यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा फॉर द मॉलिक्यूल सोडियम थायोसल्फाइड, इट इज़ गोइंग टू बी +2. ठीक है, नाउ इफ़ यू लुक एट दिस, ये ऑक्सीडेशन होने के बाद इट अंडरगोज Na2S4O6. अगर मैं इसका स्ट्रक्चर को देखूँ, देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Na2S4O6. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे हम आराम से निकल सकते हैं कि ये सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज गोइंग टू बी +5. ये दो बीच वाले जो परॉक्सी बॉन्ड जैसा कुछ है, इट हैज़ 0. ओके, क्योंकि यहाँ पे भी हर एक जगह सल्फर से बॉन्डेड है, सो इट हैज़ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. और ये वाला जो टर्मिनल सल्फर है इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5. ओके, एज अ रिजल्ट हम जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या होगा, द टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी 5 + 5 10. और कितने सारे सल्फर एटम्स है, वी हैव 4, सो इट इज़ गोइंग टू बी 10/4. और जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल कम आउट एज 2.5. ओके, सो हमने क्या देखा, हमने एक चीज़ नोटिस किया कि फॉर दिस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 एंड फॉर दिस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2.5. आई होप इतना क्लियर है. ओके, इतना अगर क्लियर है देन हमें क्या निकालना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द n फैक्टर. ओके, वी हैव टू फाइंड आउट द n फैक्टर. नाउ n फैक्टर फॉर S2O3 2- क्या होगा. सो व्हाट इज द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0.5. लेकिन हम यहाँ पे आराम से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वी आर फाइंडिंग द n फैक्टर ऑफ S2O3 2-, जहाँ पे S का एटोमिसिटी कितना है, मतलब S का कितना सारा एटम्स इन्वॉल्व है फॉर्मूला बनाने के लिए, 2. राइट, सो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 2 एंड n फैक्टर विल कम आउट एज 1. ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं दैट इज S4O6 2-, इसका n फैक्टर क्या होगा. तो इसका जो डिफरेंस है ऑक्सीडेशन स्टेट में, द डिफरेंस इज अगेन 0.5. लेकिन इसका जो एटोमिसिटी है, मतलब इस मॉलिक्यूल में कितने सारे एटम्स इन्वॉल्व है सल्फर का, 4 एटम्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 के साथ और हमारे पास आ जाएगा 2. सो आई होप इट इज़ क्लियर. सो इसका भी n फैक्टर निकालना हम लोग ने सीख लिया.
नेक्स्ट इज एन फैक्टर इन रेडॉक्स रिएक्शन. ओके, अब रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे एन फैक्टर निकालते हैं, लेट्स हैव अ लुक. सो यहाँ पे क्या है, वी हैव KMnO4 विच इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आई हैव Fe2+. सो क्या होता है, KMnO4 इट ऑक्सीडाइजेज Fe2+ to Fe3+ एंड इट इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू Mn2+. ओके, सो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम एन फैक्टर को कैसे निकालते हैं. सो फॉर Fe यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेटस इसका जो डिफरेंस है दैट इज़ 1. ओके, सो यहाँ पे NF ऑक्सीडेशन दैट इज एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन इज गोइंग टू बी 1. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फेरस आयन कितना है, 1 है, एंड डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1. ओके, लेकिन व्हेन वी लुक एट एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन किसका हुआ है, परमंगनेट सोल्यूशन, परमंगनेट का. ओके, तो यहाँ पे द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5. दैट इज क्योंकि ये +7 से +2 में जाता है, सो द डिफरेंस इज गोइंग टू बी 5. और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर कर रहे हैं. यहाँ पे Mn इज +7 एंड यहाँ पे Mn इज +2. तो यहाँ पे Mn का एटोमिसिटी कितना है KMnO4 में, इट इज़ नथिंग बट 1. सो यहाँ पे NF क्या हो जाएगा रिडक्शन का, इट विल सिंपली बी 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, दैट इज गोइंग टू बी 5. आई होप इट इज़ क्लियर, ये इतना तक क्लियर होगा. अच्छा, अब आगे चलते हैं. नाउ वी विल लुक फॉर कंबाइंड रिएक्शंस. कंबाइंड रिएक्शंस के लिए क्या होता है, कंबाइंड रिएक्शंस यानी मोर देन 1 एटम्स इन अ कंपाउंड साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड. तो हमारे पास एक कंपाउंड होगा. अब ये कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एटम्स का आइदर ऑक्सीडेशन होगा, नहीं तो रिडक्शन होगा. ओके, लेट्स सी दिस एग्जांपल. सो आई हैव दिस कंपाउंड FeC2O4. ओके, दिस इज हैविंग एन ऑक्सैलेट आयन. सो आई हैव दिस कंपाउंड FeC2O4. यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ गेटिंग Fe is getting oxidized from +2 to +3 and it is forming Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड. ओके, साथ ही साथ क्या हो रहा है, अगर हम ऑक्सैलेट आयन में देखते हैं तो हमारा जो कार्बन है, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेटस +3. सो कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ तक जा रहा है, इट इज़ गोइंग टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. यानी एक ही कंपाउंड में क्या हो रहा है, Fe इज ऑल्सो गेटिंग ऑक्सीडाइज फ्रॉम +2 to +3 एंड कार्बन इज ऑल्सो गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम +3 to +4. यानी एक ही कंपाउंड में जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन होता है, उस केसेस में हम इस रिएक्शन को बोलते हैं कंबाइंड रिएक्शन. इस वाले एग्जाम्पल में दोनों एटम्स ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं. फाइन, इतना तक क्लियर है. नाउ व्हेन इसका एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, लाइक इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द एन फैक्टर ऑफ FeC2O4, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग first we will find out the n factor for Fe and then we will simply add it with the n factor for carbon. So n factor for Fe will be nothing but यहाँ से 2 से 3 तक जा रहा है. ओके, सो यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज डेल्टा OS, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1. ओके, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1. अब इस वाले एटम का हम निकाल रहे हैं. अब इस वाले एटम में, नॉट एटम एक्चुअली, इस वाले मॉलिक्यूल का हम निकाल रहे हैं. अब इस वाले मॉलिक्यूल में कितने सारे फेरस के एटम्स इन्वॉल्व है, यानी एटोमिसिटी कितना है आयरन का, इट इज़ नथिंग बट 1. सो वी विल सिंपली मल्टीप्लाई दिस विद 1. सो हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी हमारा जो एन फैक्टर है फॉर Fe दैट इज गोइंग टू कम आउट एज 1. ओके, नाउ अगर हमें एन फैक्टर निकालना हो कार्बन के लिए, अगर कार्बन के लिए हमें एन फैक्टर निकालना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन. सो इट इज़ नथिंग बट +1 अगेन. बट यहाँ पे ये वाला जो कंपाउंड है, इसमें कार्बन का एटोमिसिटी कितना है 2. सो वी विल डू सिंपली 1 into 2. उसके बाद हमारा जो एन फैक्टर है कार्बन का, दैट विल कम आउट टू बी एज 2. तो हम क्या करेंगे, we will simply add this to 1 + 2 and n factor is thus coming out to be 3. So यानी इस पूरे जो कंपाउंड का n factor है, that is nothing but the addition of both the species which is getting oxidized. उन दोनों का n factor को add करेंगे and finally हमारे पास जो n factor आ जाएगा that is going to be 3. I hope ये भी clear है. Okay, so let's proceed further. आगे का देखते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, वट आई हैव रिटन इज SnC2O4. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली वट आई हैव ट्राइड टू शो इज दिस इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ ऑक्सैलेट आयन. तो मैं यहाँ पे जो दिखाना चाहती हूँ कि ऑक्सैलेट आयन इज ऑलवेज गोइंग टू बी लाइक C2O4 2-. एज यू नो, वट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, H2C2O4.
अब अगर मैं ऑक्सैलेट आयन को लूँ देन दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी C2O4 2-। तो यानी अगर ऐसा कोई कंपाउंड आपको दिया हुआ है SnC2O4, तो ये आप देख के पता लगा लोगे कि Sn का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू बी +2, क्योंकि ये ऑक्सैलेट का जो चार्ज होगा दैट इज़ -2। सो ये जो Sn है +2 के साथ ही -2 बाइंड करेगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो आगे हमारा है सेल्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेल्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, लाइक आई हैव अ सिंगल रिएक्टेंट। ओके, आई हैव अ सिंगल रिएक्टेंट। अब उस रिएक्टेंट में एक एटम क्या होता है, वन एटम विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर एटम विल गेट रिड्यूस्ड। ओके, रिमेंबर दिस। सेल्फ डिकम्पोजिशन क्या है, एक ही कंपाउंड होगा हमारे पास, अब उसी कंपाउंड में एक एटम ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा एटम रिड्यूस होगा। लेट मी टेल इट अगेन, एक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा एटम रिड्यूस हो रहा है। ओके फाइन, एक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा एटम रिड्यूस हो रहा है। लाइक आई हैव एन एग्जाम्पल, मेरे पास क्या है, आई हैव दिस SO3, it is getting decomposed to SO2 and it is giving us O2। तो अब हमें देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज। सो सल्फर के लिए क्या हुआ है, +6 से +4 गया है। ओके, एंड इफ आई लुक फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हैज़ गॉन फ्रॉम -2 to 0। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है एंड सल्फर का रिडक्शन हुआ है। ऐसे वाले केसेस में हम क्या करेंगे, एन फैक्टर जब हमें निकालना पड़ेगा SO3 के लिए, व्हाट वी विल डू इज़ हम लोग देखेंगे एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन। हम लोग सिंपली यहाँ पे आँख बंद करके रिडक्शन का ही देखेंगे। अगर हम रिडक्शन देखते हैं तो यहाँ पे जो आता है दैट इज़ 2। ओके, 2 कैसे आया, लेट मी इलेबोरेट अ लिटिल। यहाँ पे +6 से +2 जा रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2 एंड ये SO3 वाला जो कंपाउंड है वहाँ पे सल्फर कितना है, सल्फर का नंबर ऑफ एटम इज ओनली 1। सो यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू बी 2 × 1 दैट इज़ 2। ओके, आई होप इट इज़ डन। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या है हमारे पास, नाउ वी हैव दिस डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ पे भी सिंगल रिएक्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है दैट इज़ आई हैव वन एटम एंड दैट पर्टिकुलर एटम इज साइमल्टेनियसली गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। मतलब डिकम्पोजिशन इस तरह से हो रहा है कि वो एक ही एटम, वो कंपाउंड में एक ही एटम एक बार ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड रिड्यूस भी हो रहा है एक ही साथ। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस, यू नो। कंबाइंड रिएक्शन में क्या हो रहा है, कंबाइंड रिएक्शन में टू डिफरेंट एटम्स आइदर गेट ऑक्सीडाइज्ड, या तो वो दोनों एक साथ ऑक्सीडाइज होते हैं, नहीं तो वो दोनों एक साथ रिड्यूस होते हैं। ठीक है, दो अलग अलग एटम एक ही कंपाउंड में। सेल्फ डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, दो अलग अलग एटम एक ही कंपाउंड में, one is getting reduced and other is getting oxidized। okay, as simple as that। लेकिन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, वी हैव अ रिएक्टेंट। अब ये वाला जो कंपाउंड है यहाँ पे जो एटम है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर एक जो एटम है दैट इज साइमल्टेनियसली गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस। यानी यहाँ पे देखो आई हैव परऑक्साइड H2O2, ये क्या बन रहा है, इट इज़ ये क्या बन रहा है, H2O बन रहा है एंड यहाँ पे O2 भी बन रहा है। सो यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट है परऑक्साइड में ऑक्सीजन का दैट इज़ नथिंग बट -1। सो ये जो -1 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक बार H2O में आके इट इज़ गोइंग टू फॉर्म -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी -2। सो यहाँ पे रिडक्शन हुआ है ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे क्या हुआ है, जहाँ पे ऑक्सीजन में डिकम्पोज हुआ है इन दैट केस वी हैव ऑक्सीडेशन। ठीक है, नाउ अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हम एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, दिस इज क्वाइट ट्रिकी। ये क्या होगा, H2O2 का एन फैक्टर ये एक फॉर्मूला फॉलो करेगा, दिस इज नथिंग बट 1/NF ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू 1/NF ऑफ रिडक्शन, 1/N फैक्टर ऑफ रिडक्शन, यहाँ पे जो रिडक्शन हुआ है, 1/N फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन। लाइक लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H2O2 के केस में देखते हैं, यहाँ पे व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन। सो यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन हुआ है, ठीक है, H2O2 टू H2O। सो लेट अस सी द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे ऑक्सीजन का था -1, यहाँ पे ऑक्सीजन का है -2। सो डिफरेंस इज गोइंग टू बी नथिंग बट 1। ओके, अब
अब हमें एटोमिसिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एटोमिसिटी क्या है 2, तो सिंपली हम 1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी n फैक्टर. सो n फैक्टर यहाँ पे 2 हो रहा है फॉर रिडक्शन. सिमिलरली इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन, यहाँ पे डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी 1, और यहाँ का जो एटोमिसिटी है, जो ऑक्सीजन का यहाँ पे एटोमिसिटी है, दैट इज नथिंग बट 2. तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 1 इंटू 2, 1 मल्टीप्लाई 2 करने से जो n फैक्टर आएगा दैट इज गोइंग टू कम आउट एज 2. तो हमारे पास क्या है, हम क्या लिख लेंगे, 1/2 प्लस 1/2. सो 1/2 प्लस 1/2 इज गोइंग टू गिव यू नथिंग बट 1. सो 1/n फैक्टर का वैल्यू है, 1/n फैक्टर ऑफ H2O2 का वैल्यू है 1. इसका रेसिप्रोकल भी 1 ही आएगा. सो एज अ रिजल्ट H2O2 का n फैक्टर हम क्या पकड़ेंगे, इट विल बी नथिंग बट 1. आई होप इट इज क्लियर. सो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए हम ये वाला जो फॉर्मूला है, वी यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. ओके, नाउ कोई भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तब उसका बैलेंसिंग नेसेसरी है, ठीक है. अब अगर हम कोई भी क्वेश्चन को मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, लाइक इफ आई हैव अ रिएक्शन, सपोज आई हैव दिस रिएक्शन, N2 plus 3H2 gives you 2NH3. So this is a balanced reaction and this is Haber's process. This is the formation of ammonia. ठीक है, अमोनिया कैसे फॉर्म हो रहा है ये वो दिखा रहा है. ओके, अब इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मोल्स में बात करने के लिए हम ऐसे बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स ऑफ H2 टू गिव अस 2 मोल्स ऑफ NH3, ऐसे बोलेंगे, ठीक है. सो मोल्स के टर्म्स में बात करने के लिए बैलेंसिंग इज वेरी नेसेसरी. बट इन कॉन्ट्रारी टू दैट, इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट, ओके, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग बात करें तो हम कैसे बोलेंगे, इट विल बी 1 इक्विवेलेंट ऑफ N2, इट विल गिव यू 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2 एंड 1 इक्विवेलेंट ऑफ NH3. ओके, इक्विवेलेंट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट. ओके, आई होप क्लियर है ये, यानी आप बोल सकते हो दैट इट इज ग्राम इक्विवेलेंट. ओके, एज सिंपल एज दैट. इक्विवेलेंट मतलब ग्राम इक्विवेलेंट. तो ये चीज़ याद रखनी है, चाहे रिएक्शन जैसा भी हो, ओके, नो मैटर व्हाट, हर एक का 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करेगा. इवन द प्रोडक्ट विल बी 1 ग्राम इक्विवेलेंट. तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंडेंसी है ही नहीं. सो अगर हमें कोई भी रिएक्शन दिया जाए वेयर आई डोंट नो हाउ टू बैलेंस इट, मुझे पता नहीं कि कितना मोल के साथ क्या रिएक्ट करेगा, इन दैट केस द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू यूज इज इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट. ओके, फाइन. अब यहाँ पे थोड़ा समरी दिया हुआ है अबाउट इक्विवेलेंट मास. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस. ग्राम इक्विवेलेंट का दिया हुआ है, तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट क्या बताया गया, इट इज़ नथिंग बट मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर. ओके, ऑलरेडी हमें ये पता है कि मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इज नथिंग बट नॉर्मेलिटी. अब नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे तो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट ही बचेगा. ओके, दिस इज क्लियर, आई होप. दिया हुआ है नीचे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज नथिंग बट ग्राम इक्विवेलेंट. ओके, अब आगे चलते आगे क्या है, इक्विवेलेंस इन एसिड बेस्ड रिएक्शन. एसिड बेस्ड रिएक्शन एज सिंपल एज दैट. अब आपने पढ़ा होगा इक्विवेलेंस पॉइंट वाइल टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में हम इक्विवेलेंस पॉइंट कब बोलते हैं, जब दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाता है. ओके, दोनों में इक्विलिब्रियम आ गया है, यानी एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ बेस, यानी number of equivalence of acid will be equals to number of equivalence of base. Okay, now how can we write this? अब इसे ना I can write it as number of moles into n factor. अब ध्यान से देखना ये कैसे आ रहा है. So number of equivalent is equal to number of moles into n factor. Small n is denoting number of moles. So number of, अब what we know that what is NEQ? Actually let me write it as GEQ. ओके, सो इससे समझने में और आसानी होगा. सो दिस इज नथिंग बट लेट अस सपोज ग्राम इक्विवेलेंट. ओके, सो ग्राम इक्विवेलेंट इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर. ये मैंने पिछली बार भी आई हैव टोल्ड अबाउट दिस. ओके, कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे आई हैव ऑलमोस्ट डिराइव्ड द फॉर्मूला. ओके, स्टार्टिंग में तो ये वहाँ से आ गया. Now I can write this like n into NF, यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस. सो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी काम में आएगा. सेम इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट इन रिडॉक्स रिएक्शन में भी क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या आ जाता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. सो सेम एज दिस ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा. ओके, अब आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए एन फैक्टर का जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो यू नीड टू कीप इन माइंड द कैलकुलेशन प्रोसेसेस ऑफ एन फैक्टर. ओके, सो उससे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि कोई भी जो एटम है, ओके, एनी एटम, ओके, एनी एटम इट इज़, नो मैटर एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो, उसका ना
एक मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ. लाइक इफ आई कंसिडर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट 5, राइट? नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5. आई होप इट इज क्लियर. क्या आता है यहाँ पे? 2s2 2p3. ओके, सो इट इज 5. सो नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम वैलेंस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नॉट मैक्सिमम, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट इज 5, और इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाता है एज ए रिजल्ट? +5. ओके, और जो मिनिमम होता है ना, जो मिनिमम होता है वो हम कैसे करते हैं? जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आया है उससे सिंपली आई सब्सट्रैक्ट 8. सो यानी इफ आई वांट टू फाइंड दिस मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, आई विल सिंपली सब्सट्रैक्ट इट बाय 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई विल फाइंड -3. सो दिस इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर नाइट्रोजन. आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस. आई होप ये ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहा है आप लोगों को. ओके, सो नाउ हाउ विल वी डिटरमाइन कि ये जो कंपाउंड हमें दिया हुआ है, दिस इज वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेदर इट विल अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है. हम ये देख के कैसे पहचानेंगे? सो अब एक चीज़ देखो, अगर कोई भी कंपाउंड उसका कोई भी एटम, उसका कोई भी एलिमेंट वो अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो वो जब रिएक्शन करेगा उसके पास बस एक ही पॉसिबिलिटी होता है कि वो अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए. ओके, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए. लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव दिस कंपाउंड विच यू ऑल नो इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आई हैव KMnO4. ओके, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7. नाउ व्हाट आई नो इज Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7. ओके, Mn का इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकता है. दिस इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. सो Mn, क्या कोई भी तरीके से Mn अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा सकता है? नेवर. व्हाट विल Mn डू इज Mn रिड्यूस हो जाएगा और अपना ऑक्सीडेशन स्टेट को घटाएगा. ठीक है, तो एक्चुअली ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है. इफ आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट KMnO4, तो एसिड में अलग, बेस में अलग. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट लेटर. लेकिन ये जो Mn है ना, दिस इज गोइंग टू रिड्यूस इट्स, मतलब कम करेगा, घटाएगा अपना ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, एज अ रिजल्ट क्या होगा? ये खुद रिड्यूस होगा एंड दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा. तो ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? जो खुद अपने आप को रिड्यूस करता है एंड दूसरों को ये ऑक्सीडाइज करता है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो ये जो KMnO4 है, दिस इज हैविंग इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट Mn, सो दैट इज द रीजन इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सेम फॉर K2Cr2O7. K2Cr2O7 में क्या होता है? Cr इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. Cr का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +6. दिस इज इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. एज अ रिजल्ट वो क्या करता है? वो अपने आप को रिड्यूस करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है. ओके, सेम फॉर H2SO4. ठीक है, यहाँ पे भी आप देखिएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी +6. यहाँ पे आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा, सो इट विल रिड्यूस इटसेल्फ, क्योंकि सल्फर के लिए +6 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. जैसे जैसे वो अपने आप को रिड्यूस करेगा वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा. दस दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दस हम देख के पता लगा सकते हैं ना कि H2SO4 क्या है? इट इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए दैट H2SO4 बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ट्रू और फॉल्स, तो आप हमेशा उसमें ट्रू लगा के आओगे, क्योंकि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे दैट इज द मैक्सिमम. ओके, सेम फॉर HNO3. HNO3 में क्या है? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +5 विच इज मैक्सिमम. Thus it is going to reduce itself and thus it is going to behave as a strong oxidizing agent. Now talking about disproportionation reaction. Disproportionation reaction कौन से वाले कंपाउंड करते हैं? जिसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बीच में लाई करता है. ओके, यानी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम. लेट अस सी एन एग्जाम्पल. लाइक आई हैव H2O2. सो यहाँ पे O का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज गोइंग टू बी -1. सो यानी ये -1 से कम ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, यानी इट कैन रिड्यूस टू वाटर, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? -2 ऑक्सीजन का, और इट कैन ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0. ठीक है, सो ये याद रखना है. ये दो भी देखने से आपको समझ में आ जाएगा. वन इज सल्फ्यूर. ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, दैट लाइज इन द मिडिल ऑफ मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. सो लेट मी बी वेरी क्लियर अगेन, दैट लाइज इन द मिडिल ऑफ मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट. यानी यहाँ पे साइमल्टेनियसली क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होता है एंड रिडक्शन भी होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई हैव परऑक्साइड H2O2, आई हैव HNO3. तो यहाँ पे क्या है? HNO2 नाइट्रस एसिड. आई हैव H2SO
NaCO3 सल्फ्यूरस एसिड। तो यहाँ पे क्या है, नाइट्रस एसिड जो है, जो लाइक लेट मी टॉक अबाउट पेरोक्साइड, यहाँ पे O का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। सो इट इज़ लाइंग इन द मिडल ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है, इट इज़ लाइंग इन द मिडल ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये बात पता चलता है कि ओके इसका मतलब साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी होगा एंड रिडक्शन भी होगा। लाइक इन केस ऑफ H2O2 इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज टू O2 एंड रिड्यूस किस में हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है टू H2O। ओके, नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे आवर कंपाउंड विल हैव मिनिमम, इट विल हैव मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक Fe2+। सो दिस हैज़ मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे क्या होता है, Fe2+ का जनरल टेंडेंसी होता है कि वो Fe3+ में चला जाए। आई होप आई एम क्लियर। Fe2+ का जनरल टेंडेंसी होता है कि वो Fe3+ में चला जाए। ओके, सो एज अ रिजल्ट होता क्या है, Fe2+ Fe3+ में जैसे ही जाता है, यानी इट ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ, तो उसके मतलब उसके रिजल्ट में क्या होता है, इट रिड्यूसेस वो जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है उसे। ओके, सो इट ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ एंड इट रिड्यूसेस अदर्स। ओके, दैट इज इन द केस ऑफ ऑल दीज कंपाउंड्स। एंड ऐसे कंपाउंड्स किस में होंगे, इट विल बी इन इट्स मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल है Fe2+, लाइक हम लोग मोर सॉल्ट को बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लाइक KMnO4 एंड K2Cr2O7। सो हमें पता है ये दोनों ही काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। लाइक ये दोनों ही काफ़ी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि KMnO4 तो हमें पता है ये तीनों मीडियम में ही, यानी एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम में ही इट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इट रिड्यूसेस इटसेल्फ। लेकिन इन द केस ऑफ K2Cr2 इट ओनली बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हमने एक एसिडिक मीडियम दिया हो तो, ठीक है, अदरवाइज इट डजेंट। लाइक अगर हमने इसे बेस में रखा हो देन इट फॉर्म्स क्रोमेट। क्रोमेट क्या होता है, दिस डाइक्रोमेट, ये डाइक्रोमेट खुद अपने आप में क्रोमेट बन जाता है। एंड क्रोमेट बनने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्रोमेट बनने से व्हाट वी नो इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन्स द सेम। सो डाइक्रोमेट में भी ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +6 एंड in a similar way chromate में भी oxidation state is +6. So there is no change in oxidation state. Okay, clear? So यहाँ पे कोई change ही नहीं आता है oxidation state में. Okay, fine. अब देखना पड़ेगा कि K2Cr2 तो हमें पता चल गया, it behaves as an oxidizing agent only in acidic medium. और किस में क्या कन्वर्ट होता है, Cr6+ gets convert to Cr3+. Fine. नेक्स्ट इज KMnO4। तो KMnO4 हम देखेंगे कि कौन से वाले मीडियम में ये किस में कन्वर्ट होता है। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या है, KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। इट इज़ कन्वर्टिंग टू Mn2+ इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। सो एसिडिक मीडियम में ना ये अपने आप को सबसे ज़्यादा रिड्यूस करता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस इटसेल्फ टू अ वेरी लार्जर एक्सटेंट इन एसिडिक मीडियम। इसके वजह से क्या होता है,